So, students, in today's lecture, we will revise the chemical kinetics. Okay, so level 1 question. So, the question number 1 is the chemical kinetics, a branch of physical chemistry, deals with which thing? Structure of molecules, heat changes in the reaction, physical changes in the reaction, and the rate of the reactions. So answer is first of all chemical kinetics. So this chemical kinetics is a branch of the physical chemistry and it deals with the not the structure of molecules, it is a structural chemistry. Heat change in reaction, it's a thermodynamics. Physical change, it's a just physical processes. And chemical kinetics deals with the rate of reaction. So number 4 is the correct option. Okay, next thing, slowest reaction amongst the following under identical condition is, say, first one is NaOH plus HCl, second H plus OH minus, third NO plus O2, and fourth the CH4 plus O2. Say, remember the reaction in which whenever an ion is concerned, then these reactions are very speedy. These reactions are occurred in nanoseconds. And first one is our न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो आपको शायद याद होगा कि जब आप एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करते थे तो उस वक्त वेन एवर यू आर एडिंग द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ NaOH फ्रॉम ब्यूरेट इनटू द कॉनिकल फ्लास्क, इन द कॉनिकल फ्लास्क वी हैड टेकन HCl एंड द सेकेंड थिंग इज द फिनॉफ्थैलीन. तो जैसे ही हमने फर्स्ट ड्रॉप ऐड किया तो उस टाइम पे कलर आते आते निकल जाएगा, मतलब इन लेस देन 1 सेकेंड कलर आएगा और फिर निकल जाएगा वेन एवर वी आर एडिंग फर्स्ट ड्रॉप. लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट होने को आती है तब वो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाती है, वो दूसरी चीज़ है. लेकिन यहाँ पे सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर हम करते हैं तो एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर अकर्ड इन नैनो सेकेंड, आर कंप्लीटेड इन ए नैनो सेकेंड. Second thing is H plus NaOH minus, same, it's acid based reaction. Okay, combustion of methane is also fast reaction. See, in our LPG methane is used. Okay, this methane is used, so this methane is burnt in so much less timing. So the slowest step amongst the given reaction will be number 3. तो देखो यही लिखा है, ionic reactions are very fast, but in a covalent compound if more bond rearrangements then the much time in reaction is slow. Okay, so that's why our answer is number यहाँ पे गलती है, नंबर 3 ही आएगा. ओके, मिथेन से ज़्यादा ये आएगा. चलो, थोड़ी बहुत गलती इसमें होती रहेगी. Next, which of the following reaction is fast reaction in laboratory temperature? चलो, reaction between KMnO4 and oxalic acid, reaction between KMnO4 and more salt, hydrolysis of ethyl acetate, and the thermal decomposition of N2O5. Okay, चलो अगेन आयोनिक रिएक्शन जो भी होती है वो बहुत फास्ट होती है. ओके, सो KMnO4 एंड मोर सॉल्ट, किसी को मोर सॉल्ट का फॉर्मूला पता है? इट्स अ फेरस एमोनियम सल्फेट. इट्स अ डबल सॉल्ट. ओके, फेरस अमोनियम सल्फेट इज अ मोर सॉल्ट. ओके, एक्चुअली ये 9 चैप्टर में दिया है मोर सॉल्ट. ओके, तो उस टाइम पे फिर आपको याद होगा अगर 9th हो चुका है तो. चलो नेक्स्ट, अंडर अ गिवन सेट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस विथ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन decreases, increases, remains, and the first decreases and then increases. So answer is number 2. Rate is directly proportional to the concentration of reactants.
सिंपल. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. In a chemical reaction, rate of chemical reaction increases with temperature, and the reason for it is number of collisions between molecules increases, decrease in activation energy, increase in number of effective collision of molecules and decrease the activation energy, and the fourth one is kinetic energy of reactant increases. तो अब देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है ये. In a chemical reaction, rate of chemical reaction increases. So rate increases with temperature, with increase in temperature. मतलब जब temperature increase होगा तो rate मतलब speed of reaction वो क्यों increase होगी. तो देखो कॉलिजन तो इंक्रीज होगा ही, लेकिन वो कॉलिजन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए. विलियम लुइस एंड मैक्स स्ट्रॉस ने जो दिया था ना वो. तो ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, सिर्फ कॉलिजन अगर हर बार कॉलिजन होगा तो प्रोडक्ट मिलेगी ही, याद करो उस वक्त प्रोडक्ट आपको नहीं मिलती है. उस टाइम पे वो प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए, जो प्रॉपर डायरेक्शन विथ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी. तो उसके लिए वर्ड क्या है, इफेक्टिव कॉलिजन. इफेक्टिव कॉलिजन मतलब हियर द मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडेड विथ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट थिंग, इफेक्टिव कॉलिजन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो कॉलिजन होता है वो प्रॉपर डायरेक्शन में होगा. एंड देन आफ्टर वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर हियर द नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज. अब वो इंक्रीज होगा जिससे क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी और वो रिएक्शन फास्ट होगी. ओके देखो यहां पे यही समझाया है कि इन अ केमिकल रिएक्शन इफेक्टिव कॉलिजन्स रिजल्ट इन द मोर प्रोडक्ट्स. So effective collisions are caused by the activated molecules, so that the activated molecules are formed due to the lower kinetic energy, lower activation energy. Activation energy लो होगी जिससे क्या होगा, activated molecules ज़्यादा मिलेंगे जिससे क्या होगा, effective collision ज़्यादा होंगे. Simple. So third number is the right answer. चलो ये अपना कैंसल टॉपिक है. Next, with increase in temperature, the value of rate constant of the reaction generally. चलो 4 options दिए आपको. Okay, so with increase in the temperature, the value of rate constant increases. Simple. Okay, next. Okay. In a reactions involving the gaseous reactants and the gaseous products, the units of rate. तो जनरली अगर गैसियस कंपोनेंट्स होते हैं तो फिर यूनिट क्या होगा, तो याद करो रेट का फॉर्मूला क्या था, डिक्रीज या तो फिर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन पर टाइम. अब जनरली ये जो कंसंट्रेशन है वो हम मेजर करते हैं मोलर में, बट हियर यू आर गिवन the reactants and products both are in gaseous state, so at that time the concentration is measured in a pressure. That's why our unit will be atmosphere per time, and time is taken here in second. वो कैसे पता चला, 4 ऑप्शन देख लो. Okay, so which is the correct answer, tell me. Here in this case number 3. Okay, so number 3 is the correct answer. Next. चलो अब यहां पे एक सीक्वेंस आपको दी है, A gives B, B gives C and C gives D. A gives B, ये जो रिएक्शन है इसका रेट कांस्टेंट है K1, B gives C इसका रेट कांस्टेंट है K2 and C gives D इसका रेट कांस्टेंट है K3. So here K3 has the highest value. That means इसका रेट कांस्टेंट हाई मतलब इसकी स्पीड सबसे ज्यादा. ओके तो चलो याद करो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, क्यों,
क्योंकि K1 की वैल्यू सबसे कम, K1 की वैल्यू सबसे कम, दैट मीन्स इसका स्पीड सबसे कम, एंड स्लोएस्ट स्टेप इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. वेरी गुड. सो आवर आंसर इज 2 number. Okay, next. A graph is drawn between the concentration of reactant and the time. The slope of the tangent drawn in the graph point corresponding to rate of reaction, rate constant of the reaction, rate constant at t time, rate of reaction at t time, and the half life period of the reaction. तो याद करो, concentration of reactant and the time. अगर ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ आपको कैसा मिलेगा पता है? ऐसे कर्व मिलेगा. ओके, अब पर्टिकुलर पॉइंट पे याद करो, थियरी आपको याद आई होगी शायद थोड़ी बहुत. पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये अपना टेंजेंट, तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा आर इंस्टेंटेनियस. ओके, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज नोन एज आर इंस्टेंटेनियस. आर मतलब रेट, नॉट द रेट कांस्टेंट, मतलब 2 इज नॉट आवर आंसर. ओके, और ये टी टाइम पे अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो फिर ये है अपना रेट ऑफ रिएक्शन एट टी टाइम. रेट ऑफ रिएक्शन फिर ये तो एवरेज भी हो गया, कुछ नहीं लिखा, मतलब हाफ लाइफ टाइम ये तो होगा ही नहीं कभी. ओके, लेकिन याद रखो, अच्छा क्वेश्चन है ये. तो रेट ऑफ द रिएक्शन आएगा, देख लो. Okay, so the rate of the reaction is not the constant, it changes with time. So the rate of reaction should be the mentioned. Okay, तो at t time, at particular time limit, मैंने अभी ड्रॉ किया ना ये, तो याद है, तो ये r instantaneous है. Next, in which of the following cases does the reaction go fastest to completion? तो चलो वो कैसे डिसाइड होगा कि जिसकी के वैल्यू द हाईएस्ट, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा, मतलब दिस रिएक्शन विल गो फास्टेस्ट फॉर द कंप्लीशन. सो दैट 1 इज द करेक्ट आंसर. अगेन, द रिएक्शंस x gives y gives z are called consecutive, parallel, reversible और चेन रिएक्शन. चलो क्या होगी ये? तो ये सिक्वेंटाइल रिएक्शन है. अगर x में से y बनेगा तभी दूसरा स्टेप होगा. साइमल्टेनियस नहीं बोल सकते, मतलब पैरेलल नहीं है ये. रिवर्सिबल तो चलो वो तो आपको पता है. चेन रिएक्शन वो भी नहीं है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल डिकम्पोज होगा, फिर उसका जो स्मॉल पार्ट है उससे दूसरा मिलेगा. ऐसा नहीं है, यहाँ पे x इज ऑलरेडी 100% इज कन्वर्टेड इनटू y. सो दिस इज कॉन्सेक्यूटिव रिएक्शन. चलो याद रखना ये. Next, the rate of the chemical reaction would, चलो 4 ऑप्शंस दिए हैं. ओके, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वुड डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड. वो हम कैसे बोल सकते हैं, देख लो. तो याद हो तो हमने स्टार्टिंग में ऐसे कोई ग्राफ ड्रॉ किया था, और उसमें मैंने ऐसे समझाया था कि whenever we are taking a simple reaction, that is R gives P, and if a graph is plotted concentration versus time, so with increasing time, as time passes, concentration of reactant decreases, but at starting level the decrease in concentration is so much high, but when reaction reaches for the completion, at that time it becomes slower. That's why we are finding the average rate of reaction. इसलिए हम एवरेज फाइंड आउट करते थे, क्योंकि हर मोमेंट पे वो रेट उसका डिफरेंट होगा. जब रिएक्शन स्टार्टिंग में होगी तो वो बहुत फास्ट होगी, लेकिन जब कंप्लीशन होने को आएगा तब वो रिएक्शन स्लो हो जाएगी. याद करो 11th के प्रैक्टिकल्स यही समझाया था उस टाइम पे मैंने जब थियोरी करवाई तब, कि सपोज आपने ब्यूरेट में NaOH लिया है और फिर 10 ml आपने एसिड मेजर किया है पिपेट से, और फिनोफ्थैलिन के 2-3 ड्रॉप्स अंदर डाल दिए हैं.
Okay, and now we are adding the NaOH drop by drop from the burette into the conical flask. So at starting level, the color will disappear in a moment. But when reaction reaches for the completion, at that time, if we add the NaOH, the color will remain, but after some time it will disappear. That means, इसका मतलब ये हुआ कि जब कंप्लीशन की बारी आई तब वो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाती है, वेरी स्लो. ओके, तो ये है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वुड डिक्रीज एज रिएक्शन प्रोसीड्स. ओके, तो ये ग्राफ से ही पता चलता है. देखो कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखना. हाँ, कि यहाँ पे हम ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं. देख लो, टाइम लिमिट हम वही रखते हैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन यहाँ से यहाँ. अब वही डिक्रीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो उसके लिए जो देखो ज़्यादा टाइम लगेगा. ये इतना ही है, लेकिन रिक्वायर्ड टाइम पहले इतना था, अब वो टाइम इंक्रीज हो गया. देख लो क्यों, क्योंकि रिएक्शन स्लो हो गई है, दैट्स वाई. नेक्स्ट. ओके, वही यहाँ पे समझा दिया है. द फैक्टर विच डजंट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन, temperature and molecular mass. तो आंसर इज molecular mass. molecular mass ऐसे कैसे पता चलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, molecular mass के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है उसकी. नेक्स्ट. द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स on the nature of the reactant, because चलो इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं. ओके, सो द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स. तो उसका रीजन क्या है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन in the reactant molecules and the number of bonds formed in the product molecules, it changes. That's why the rate of chemical reaction depends on the nature of reactants. Reactants कौन से टाइप के हैं, प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. The rate of reaction decreases with increase in बोलो चलो आंसर इसका. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, टाइम ऑफ द रिएक्शन, विथ ऑल ऑफ 3. तो जब जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा. अभी हमने समझा है ना, अभी जो पूछा था वो रिवर्स पूछा था, विथ इंक्रीज इन टाइम रेट ऑफ रिएक्शन डैश करके दिया था, यहाँ पे उल्टा दे दिया है. जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो स्लो होती जाएगी. सिंपल. ओके, हाँ, गुड फॉर्मूला देख लो. रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon inversely proportional to time. Dimensions of the rate of reaction. तो देखो क्या होगा, कंसंट्रेशन, टाइम, बोथ, नाइदर टाइम नॉर कंसंट्रेशन. तो आंसर होगा 3. क्यों? रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या है, कंसंट्रेशन पर टाइम. सिंपल. नेक्स्ट. Okay, 3 is the correct answer. Next, which of the following about the rate constant K of the reaction, and this statement is wrong. Okay, देखो तो अब यहाँ पे तो यूनिट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट, तो इसका यूनिट है मोल पर लीटर रेज टू 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स. ओके, और वो 1 माइनस n अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. तो देखो लीटर के लिए क्या होगा n-1, मोल के लिए क्या होगा 1 माइनस n,
n second inverse, or atmosphere raised to 1 minus n second inverse. Simple. So the units of nth order reaction rate constant, and 3 is the correct one. See, if we change the temperature at that time, k will change. तो यहाँ पे इट रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट द कोर्स ऑफ रिएक्शन. मतलब बीच में अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो फिर के चेंज हो जाएगा, तो मतलब ये तो गलत ही होगा. डन. यूनिट ऑफ के, तो उसका तो यूनिट ये है, तो हर अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर होगा तो फिर यूनिट उसका डिफरेंट होगा. ओके, नेक्स्ट. For the irreversible chemical reaction, the concentration of the products with time increases, decreases, doesn't change. And the fourth option is some more data required. मतलब incomplete data is given. Okay, so with increase in time, the concentration of reactant decreases. ओके, बट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस. तो याद हो तो इसी वजह से ग्राफ हम ऐसा ड्रॉ करते थे, याद हो तो. रिएक्टेंट के लिए ऐसा ग्राफ था और प्रोडक्ट के लिए ऐसा ग्राफ था. ओके, नेक्स्ट. अ कैटलिस्ट. See, a catalyst, so increases the heat of reaction, decreases the heat of reaction. Always remember that catalyst doesn't change the heat of reaction. Okay, तो वो क्या इंक्रीज करेगा, वो एक नया पाथ बना देगा. सपोज कोई रिएक्शन अनकैटलाइज्ड हो रही, तो वो ऐसे हो रही है, तो फिर ये अपनी तरह से कोई नया शॉर्टकट बना देगा. प्रोडक्ट उतनी ही मिलेगी. इट डजंट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, but it creates a new path to get the product. Okay, ये लाइन जो है वो uncatalyzed and this one is the catalyst. Okay, तब जाके वो rate of reaction increase करेगा. चलो, एक रिएक्शन दी है यहाँ पे. अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो सही है, वो तो पता चल गया होगा. सेकेंड एंड फोर्थ आर ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि दोनों सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब यहाँ पे क्या एक्चुअली होना चाहिए, -1/2 DNO2/dt इक्वल्स +1/2 DO2/dt DNO/dt एंड इक्वल्स प्लस DO2/dt. ओके, तो यहाँ पे भी ये रिप्रेजेंटेशन ये रिप्रेजेंटेशन सही है जो लिखा है उस हिसाब से कि द एवरेज रेट्स ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO, तो उसके लिए यही है, सही है. तो ये जो 1/2 किया है वो तो सर जस्ट वन सेटलमेंट है टू गेट द सेम रेट ऑफ रिएक्शन, कि जितना NO2 मिल रहा है तो वो 2 मोल्स मिल रहा है. यहाँ पे 2 मोल्स फॉर्म हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे 1/2 हमें लिखना पड़ेगा, वो तो पता होगा आपको. ओके, तो यहाँ पे चारों चीज़ें सही है, मतलब देयर इज नो ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट. The term dc/dt in the rate equation refers to, चलो, concentration of reactant, change in concentration of reactant or product with time, velocity constant and the concentration of product. तो यहाँ पे आएगा change in concentration dc/dt ना, तो dc/dt जनरली जो minus dr/dt, so change in concentration of reactant and product can be represented like this. ओके, तो रिएक्टेंट्स या तो फिर प्रोडक्ट्स विथ टाइम. सी क्या दिया है, कंसंट्रेशन, लेकिन किसका, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, वो उन्होंने इंडिकेट नहीं किया है. सो बी 2 नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन. चलो, नेक्स्ट.
So next question, in the reaction A gives B, if the concentration of A increases by 4 times, the rate of reaction becomes doubled. So the order of reaction is okay. So here the concentration of A is increased by 4 times. It means V1 equals K into A raised to N. V2, new rate, is formed when the concentration of A is taken 4 times. At that time, new velocity becomes twice of initial. Okay, so this is the formula. And now take the V2 by V1. चलो V2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, K इंटू 4A रेस टू N. और V1 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, K इंटू A रेस टू N. चलो K कैंसल्ड, और यहाँ पे दोनों का पावर हम N लिखेंगे. ओके और V2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2V1 अपॉन V1 इक्वल्स 4 रेस टू N. V1 कट, so 2 equals 4, that is 2 a square of 2. 2n equals 1. That's why we are getting n equals 1 by 2 over. So 3 is the correct answer. Next. ओके चलो एक रिएक्शन दी है, उसमें बी हमने एक्सेस ले लिया है, तो फिर बचा क्या, ओनली ए. ओके तो अगर ए बचा है तो फिर वो होगा ऑलमोस्ट फर्स्ट ऑर्डर. यहाँ पे एक चीज़ उनको लिखने की रह गई, क्या पता है, रेट इक्वल्स के इंटू ए इंटू बी, ऐसा. ओके so reaction will be of first order. चलो K का यूनिट, तो इसके लिए क्या होगा, चलो ट्राई करो अपने आप. ओके सो द यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सी नंबर 3 मोल्स इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स. क्यों ये होगा, क्योंकि याद करो कि यूनिट ऑफ K का फॉर्मूला क्या था, मोल पर लीटर रेस टू 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स. मोल पर लीटर 1 माइनस एन, सो यहाँ पे n सेकेंड ऑर्डर दिया है, मतलब 1 माइनस टू इज -1 सेकेंड इनवर्स. चलो तो यहाँ पे मोल इनवर्स होगा, लीटर इनवर्स ऑलरेडी है और हमारे -1 चार्ज, तो लीटर raised to 1, no need to write and second inverse. So 3 is the correct answer. चलो अब इसका आंसर बोलो. Say, in this question, the slowest step contains 2 components, 1A and 1B. That's why our answer is 2, because in slowest step is the rate determining step, and the number of molecules which are reacted in the slowest step is known as the order of reaction. चलो अब यहाँ पे बोलो. तो अब देखो इस क्वेश्चन में द रेट इक्वेशन ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ NaOH इज गिवन. सो रेट इक्वल्स K इंटू एस्टर इंटू NaOH. ओके सो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इज इंक्रीज्ड 100 टाइम्स, मतलब NaOH का कंसंट्रेशन हमने बहुत ज़्यादा ले लिया, so at that time the difference in the concentration of NaOH will be negligible. That's why this K and K
K and NaOH. So this multiplication is constant. That's why the power of ester is 1. So at that time our answer is 1. तो चलो समझ में आया होगा कि जब भी जिसका भी कंसंट्रेशन हाई लेते हैं हम बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू द अदर्स, तो उस टाइम पे क्या होगी, जो रिएक्शन होगी उसमें बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक ही टर्म के लिए हम फाइंड आउट करते हैं. ये सिस्टम किसके लिए फाइंड आउट होती है पता है? सपोज A प्लस 2B प्लस 3C प्लस D प्लस 5E विच गिव्स प्रोडक्ट सो एन. तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स कितने 1 2 3 4 5, तो सबका मुझे ऑर्डर फाइंड आउट करना है. तो फिर कैसे करूँगा मैं? तो ऐसा करो कि कोई एक का कंसंट्रेशन लो ले लो, बाकी के कंसंट्रेशन हाई ले लो, तो इनमें चेंज नेग्लिजिबल आएगा. ये वाली बात हुई यहाँ पे. आपने 100 टाइम्स कंसंट्रेशन लिया मतलब बहुत ज़्यादा. सपोज आपने 0.1 लिया होगा फिर भी ये 10 मोलर हो जाता NaOH का कंसंट्रेशन. ओके, सो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 1. एक 1 स्टेप प्रोसेस आपको दी है, देख लो. तो रेट लॉ क्या होगा? तो एक ही स्टेप में जब भी रिएक्शन होती थी वो रिएक्शन कैसी होगी पता है? रेट बिकम्स A इंटू बी स्क्वायर. क्यों? जितने भी मोल्स होंगे वो डायरेक्टली पावर में आ जाएंगे जब कोई भी रिएक्शन अगर होगी ना. तो मतलब 95% केसेस में ऐसा देखा गया है. इसलिए वैसे तो हमें कंपलसरी बताना ही पड़ेगा कि विथ रिस्पेक्ट टू A और B क्या होगा. नेक्स्ट, चलो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा? ओके, चलो अब देखो, रिएक्शन में टोटल 2 मोल्स यूज हो रहे हैं, लेकिन इसका पावर यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया, दैट मीन्स 1 दिया है. तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में द रिएक्शन इन विच इफ 1 मोल ऑफ NO2F इज रिएक्टेड. तो ऐसे कितने 2 ऑप्शन, लेकिन इसके साथ F है ना, तो फिर F भी होना चाहिए ना. तो वो तो दिया ही नहीं है. दैट्स व्हाई वी हैव टू चूज द रिएक्शन इन विच ओनली 1 कंपोनेंट इज इन्वॉल्व्ड. दैट इज अवर ऑप्शन नंबर 3. ओके, और इसका देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आज हमने एक पार्ट हमने आज कंप्लीट किया. तो नेक्स्ट सेशन में हम ऐसे ही टिपिकल और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके.